करते हैं अगर हमें टॉपिक की so we have seen load curve, load duration curve, and we also seen the average load and the numericals related to it. Now it's time to do the homework also. When you're referring this content from the textbook, or we can say the reference book in VK Mehta, you can see that there is a different types of load, different types of load which is given on our different power plants is calculated, and it is given optimum efficiency. That is what we are looking for. तो अभी हमें देखना है selection of size and number of generators on basis of the load. Now how we are going to do that? So that time our load duration curve will help you to get the exact amount of the load which is available for how many number of hours, and according to the number of hours, more the number of hours, you will be getting a constant load. Okay, so let's see. We have seen the types of load, we have seen the diversity factor as well. Give me a moment. Okay, so there is some continuous something going on, so anyways, we need to focus. Okay, I need to focus rather. So we are going to see today we are going to see how we are going to select the size and number of generators. Okay, let's see that. Selection of generating units. Is it visible now? So when we talk about the selection of generating units, what we are going to talk is whenever we say a thermal power plant or a hydro power plant, there is not a single unit which is adding the overall generation capacity. ऐसा नहीं होता है, बट आपका छोटे छोटे यूनिट्स रहते हैं जिसमें जितने नंबर ऑफ जनरेटर्स है उतने नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पावर स्टेशन में होते हैं, एंड accordingly that how many generators we should select, what is the capacity of that each generator should be. तो ये सारी चीजें हमें देखना जरूरी होता है, and how the load curve and the load duration curve is basically helping us to decide this number of generating stations and number of the size of each generators. That is what we are going to look today. So the load on a power station is a seldom constant and it varies from time to time, and obviously a single generator unit will not be an economical proposition to meet its varying load. So if there is a varying load, we can consider that there will be an changing efficiency, or we can say the less efficiency, if we comparing a single generator with a higher loading on that generator. Like yesterday also I was discussing about that कि अगर आपका जो अल्टरनेटर है या आपका जनरेटर है वो अगर आपने 80% या 85% या 100% लोड पे अगर आप वो काम कर रहा है तो उसका इफिशियंसी ज्यादा होगा. वॉट एवर द अमाउंट ऑफ coal which you have burned there, all coal is converted into electricity and it is also giving you the money out of it. So that's why we are considering this load curves, and the load curves are ultimately giving us the value for our higher efficiency. When we have the different number of, or we can say more number of generating stations with the different units. Okay, now units is like one TG set or one turbine generator set is considered as one single unit. Okay, so let's see. So it is because a single unit will have a very poor efficiency during the periods of light load on the power station, and therefore in actual practice a number of generating units of different sizes are installed in a power station. The selection of the number and sizes of the unit is decided from the annual load curve of the station. Now what do you mean by that? When we have the load curve for a complete year, we understood that the plant will be having a X amount of units generated throughout the year, and then how much is variable component and how much is a constant component, that we are going to understand. So the number and size of the units are selected in a such a way that they are correctly fit at the station load curve. So if the station load curve is understood properly, then we can create a proper combination of sizes and number of our units. Like you can see in this graph, this is a basically load curve for a complete day, one day, and this is the average load curve for throughout the year.
इट मीन्स पूरे साल का अगर हमने एवरेज निकाला तो कुछ इस तरह से हमारा डेली लोड कर्व जो है वो होता है. नाउ द 24 आवर्स सम एक्स और सम अमाउंट ऑफ load will be there which is continuous in nature and that is shown at the bottom side of the graph. ये ग्राफ में जो आपको बॉटम एरिया दिख रहा है, can you see that? Just type yes in the chat box so that I can understand you are in line with this. So this one part is basically the constant load or we can say base load, and we have different peak like peak 2, peak 3, and for some amount like 300 megawatt and above we require additional power, but that is only for some small duration. So we will be having a combination of 3 units in one power station instead of having a one single unit of 500 megawatt capacity. ये समझ में आया कि आपको 5 मेगावाट का 500 मेगावाट का एक सिंगल यूनिट होने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट बना रहे हैं 150 मेगावाट का, दूसरा बना रहे हैं 150 मेगावाट का, और जो तीसरा है वो बना रहे हैं 200 मेगावाट का. अब ये कैसे पता चला? 250 मेगावाट का. ये कैसे पता चला? यहाँ पर देखो लोड कर्व में आप 100 तक देखेंगे, 100 एंड 200 के बीच में लाइक दिस इज अ 1 यूनिट, तो हमारा बेस लोड यूनिट की जरा काम करेगा. सिमिलर कैपेसिटी का सेकेंड यूनिट भी है, बट दैट इज ऑपरेटिंग ओनली फॉर द पीक लोड कंडीशन. बाकी समय वो बंद रहेगा तो भी चलेगा. वो बंद रहेगा मतलब उसका कैपेसिटी पूरा जीरो हो जाएगा. जीरो हो गया मतलब दैट इंस्ट्रूमेंट और दैट डिवाइसेस आर कंप्लीटली ऑफ, तो उसका एफिशिएंसी का कोई इशू नहीं है ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे पीरियड. एंड जो थर्ड यूनिट है और थर्ड यूनिट से आने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट विल बी फॉर द पीक डिमांड, तो मैक्सिमम रेवेन्यू भी वहां से आएगा और वो उस समय पर ही सिर्फ हम चलाएंगे. वेयर you can use a gas turbine power plant there at this location, or you can have a hydro plant there, but in the bottom or we can say the unit number 1 has to be a thermal, और जहां पर हमें ज्यादा वेरिएशन करना अलाउड नहीं है, ऐसा जो यूनिट है वो आपका यूनिट नंबर 1 होता है, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज अ बेस लोड प्लांट. ओके, बेस लोड प्लांट है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 इज अ पीक लोड प्लांट. ओके, आई होप ये पॉइंट यहाँ तक समझ में आया आपको. इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए, या फिर ये डायग्राम जो है आपको फिगर 3.11 या आपको टेक्स्ट बुक में देख के आपके नोटबुक पे ड्रॉ करके रखना है. दिस ग्राफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड सेम टाइप ऑफ ग्राफ यू नीड टू ड्रॉ व्हेन यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. ओके, परफेक्ट. आगे बढ़ते हैं. ना उसका डिस्क्रिप्शन दिया है. यूनिट नंबर 1 कब यूज होगा? फ्रॉम मिडनाइट 12 टू मॉर्निंग 7 o'clock तक यूज होगा. आफ्टर दैट 7 to 12 noon unit 2 is in also operation. So 1 and 2 both are in operation. From 12 to 2 unit 2 is stopped, only unit 1 is operating. तो ये आप ग्राफ देख के भी आसानी से समझ सकते हो. ओके, आई होप सो, राइट. आप ग्राफ देख के ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है लिखित स्वरूप में, उससे आप समझ सकते हो. डू यू एग्री विथ मी और नॉट? हेलो, ये जो टाइम और यूनिट्स इन ऑपरेशन जो लिखा है, ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ग्राफ पे देखिए आप 12 बजे से सुबह 7 बजे तक यूनिट 1 चालू है, 7 बजे से 12 बजे तक यूनिट 2 को भी चालू किया है और यूनिट 1 तो चालू है ही, राइट, इट इज रनिंग. आफ्टर दैट 2 to 5 आपका यूनिट 3 को शुरू होने के लिए लगेगा. तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आर रनिंग और 1 एंड 2 के बीच में ओनली यूनिट 1 इज ऑपरेटिंग बिकॉज देयर इज अ वैली. जैसे पीक होता है, पीक मतलब हाईएस्ट पॉइंट और वैली मतलब लोअर साइड, लोएस्ट पॉइंट. तो 1 और 2 के बीच में 12 और 2 के बीच में देयर इज अ वैली. सो ओनली यूनिट 1 इज वर्किंग एट दैट टाइम. यूनिट 2 इज ऑल्सो स्टॉप करने का मतलब यही है कि वहां पे आपको बेनिफिट होने वाला है उसको स्टॉप करके. कभी कभी पैसा बचाना ही, पैसा खर्च मतलब क्या बोलते हैं उसको, खर्च ना करना भी एक तरह से आपका इनकम होता है. तो उसी तरह से यहाँ पे डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन करके कुछ फायदा नहीं है, तो मशीन को बंद रखेंगे तो उसको बेनिफिट होने वाला है. इतना समझ में आया एवरीवन? आगे बढ़ते हैं. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द यूनिट.
अभी ये तो एक क्राइटेरिया समझ में आ गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। द नंबर एंड साइजेस ऑफ द यूनिट शुड बी सिलेक्टेड दैट दे आर अप्रोक्सीमेटली फिट द एनुअल लोड कर्व ऑफ द स्टेशन। ये डेली लोड कर्व तो ठीक है, समझ में आता है। एनुअल लोड कर्व जो है उसमें भी वो फिट बैठना चाहिए। से फॉर एग्जांपल दीपावली आ गई और दीपावली के समय पे लोड कंडीशन ऐसी है कि हमारा तीनों यूनिट्स चालू है, फिर भी द डिमांड इज मोर देन आवर सप्लाई। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वी हैव द यूनिट शुड बी हैव प्रेफरेबली different capacity to meet the load requirement. Although use of the identical units like we have seen 150 यूनिट 150 मेगावाट का एक यूनिट 150 मेगावाट का दूसरा यूनिट, तो ऐसा करेंगे तो नहीं जमेगा। तो it should be mostly combination, okay, combination करना है। Then the capacity of the plant should be 15 to 20% more than the maximum demand so that future load can be possible। फ्यूचर लोड डिमांड जो है वो पॉसिबल हो सकता है ओनली इफ वी हैव द 15 to 20% एक्स्ट्रा capacity of the maximum demand. Next is that there should be a spare generating unit so that we can have a overhauling or a outage on our units. Okay, that is the one thing. Second thing is that whenever there is any trip or any failure of a unit happens, another unit will take charge and the supply will be smoothened. Okay, तो इसके लिए ये भी सारी चीजें सेफ्टी फैक्टर्स, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है when you are selecting the size and the amount of that power of that particular unit. Okay, आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हमें मिला 110 मेगावाट का तो हमने लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। That is a calculation which is being done. Okay, आगे बढ़ते हैं। The tendency to select a larger number of units of a smaller capacity in order to fit the load curve very accurately should be avoided because investment cost per kilowatt of a capacity increases as the size of the units decreases. Very true. आपको बॉयलर भी उतनी ही साइज का लगने वाला है, आपको अल्टरनेटर टरबाइन अरेंजमेंट वो भी उतनी ही साइज का लगने वाला है। तो ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट है तो why you are going to have a smaller number of capacity and more number of units। मतलब ज्यादा यूनिट्स 50-50 के 10 यूनिट लगा दिए तो भी 500 मेगावाट हो जाएगा। 100 मेगावाट के 5 यूनिट लगाएंगे तो भी 500 मेगावाट हो जाएगा। और 200 का एक और 250 के 2 लगाएंगे तो भी 500 मेगावाट हो जाएगा। या 400 का एक और 100 का एक अगर करेंगे तो भी ये होने वाला है। So what I suggest you write down these points in your notebook right now. Rohan sir, hello. Rohan sir, hello. Hello students, sorry for that you are waiting. There is something going on in the institute that we need to address. So okay, am I audible now everyone? Hello. Yes sir, audible. Okay. Sorry for the delay and let's move ahead. That first point we are going to see now is, as you are seeing the screen, base load and peak load power station, what exactly the base load plant is. Then when we talk about the load curve where the load is varying in nature, if we calculate all the time 24 hours what exactly the amount of load is available 24/7 or you can say 24 hours continuous load कितने मेगावाट का है वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं and then a plant or a unit is generating electricity to provide only that much amount of load throughout the day, then we call that plant as a base load plant, and that load which is there you can see here in the graph is considered as a base load. Whereas when beyond the base load condition, if the value of amount of that power being consumed is increasing, then we call it as a peak load, and the plant which is providing that peak load is give you an the efficiency, better efficiency if we are using the peak load plants for shorter duration of time as per the load requirement. So instead of having a plant running of 40 megawatt capacity, like you can see here, there is a 40 megawatt is the highest peak, right? Can you see that? Just type yes in the chat box. And then instead of having a one single unit of 40 megawatt, we have a 20 megawatt unit which is running continuously and 20 megawatt units for the peak load. Like that it is working. So I hope you got this point, base load and peak load.
Okay, perfect. आगे बढ़ते हैं. Now how we are going to meet the load? So there is a chances that we have different types of power stations, right? What do you mean by different power stations? Like you have thermal power station, you have hydro power station, you have a nuclear power station, right? So when we are doing an example of say Tata Power, how many of you know the company Tata Power? So earlier in 1910, this company was having a hydropower station. So after hydropower station, they started their thermal power station also in some 1956 के around. हाँ, yes, 56 के around. So वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ हाइड्रो एंड थर्मल, तो समटाइम्स hydro power station needs less amount of time to start the station, whereas thermal power plant required 8 to 6 to 8 hours of starting time. So we cannot use a thermal power plant continuously. Okay, like we cannot use it for say 2 hours in a day or 3 hours in a day. We cannot do that. But in hydro plant, it is possible. So in hydro plant, what happens is basically the peak load plant and this base load plant is identified as per the shape and size. But for the hydro plant, we have a limitation of availability of the water, right? Availability of the water in the reservoir. So that time, what we are going to do is whenever there is a rainy season or a high flow day, we are using hydro as a base load plant. And when there is a low flow day like summer days, we use steam plant or a thermal plant as a base load plant, and hydro is only for the peak load. So that's how you are saving on the water as well as you are giving the best performance, best what we can say, the pattern of using hydro as well as thermal power plant. Okay, यहाँ तक समझ में आया सबको? Okay, आगे बढ़ते हैं. Now this point interconnected grid system is from the next chapter. Last chapter, उसमें हमें ये पढ़ना है. But before going to that, I want to show you something. We need to do the calculation for this. Okay, base load and peak load plants and runoff river plant and reservoir based plant. What is the best way to utilize the combination of the hydro as well as thermal plant? Okay. Okay, so now we are going to the next part, that is called as a So the combination of hydro and thermal, what we are discussing, is under the hydrothermal coordination, and the graphs which you have seen, those will be helpful for understanding the concept. Okay. Now next is energy conservation in power sector, that we will see later on in the chapter number 10, or mostly in chapter number 9 also we are going to see, where we have demand side and supply side management concept. Okay. Now we are going to see the cost of power generation. Cost of power generation is again a very lucrative term, because you can see in when we are talking about these thermal power plants and hydro power plants or nuclear power plant, the amount of energy which is being generated and sold to the customers is tremendous. And if a single penny is being saved, it will be like from lakhs of people. If we are saving a 1 rupee, and then it will be a very huge amount. So what are the different costs which are involved in the generation process, that we are going to see. How to calculate these costs, what are the different factors which are associated with this, and how we can actually calculate the expenses which are happening on our plant. So that plant can be any type, like a hydro plant also or a thermal plant also. Plant का type हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, but what are the costs which are involved there? Okay. So अगर हम बात करेंगे cost जो involved है, और उसमें first category आपको दिख रहा है, that is a fixed cost. Okay, fixed cost. But before going to the fixed cost and that category, I want to ask you one question. आपके एक अंदाज से मुझे बताओ कि एक आपका 1 मेगावाट का पावर प्लांट है. सो 1 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए आपको कितना खर्चा लग सकता है? टेल मी इन द चैट बॉक्स. 1 मेगावाट का प्लांट है, कितना कॉस्टिंग आएगा? You can give any rough idea, guess, random guess. Anyone just unmute and tell me also.
Hello, am I audible? Then give the answer. 60 crore, 6 to 7 crore, 300 crore, 30 crore, 25 crore. Okay, whatever the amount is not important. Your participation is important. So just imagine the 1 megawatt plant is approximately costing you say 5 crore, okay, or 10 crore, say for example, and now you want to install a plant for 500 megawatt or 100 megawatt. What is going to happen with that huge amount of money? That you need that amount either from your pocket or from the loan or from some agency or from some government. The money is being put there. So when you get a money for your project, it immediately becomes the loan, right? And when it becomes the loan, what is the next? लोन के साथ क्या आता है? एनीवन? स्पॉन्सर नहीं आता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। यस, लोन के साथ आता है इंटरेस्ट। तो आपने 500 करोड़ का प्लांट लगाया, आपने ना जमीन लिया है, ना आपने मशीन लिया है, ना आपने ट्रांसमिशन लाइन के टावर लगाए हैं, ना आपने ऑफिस लिया है, ना आपने कस्टमर बनाए हैं, उसके बावजूद भी इंटरेस्ट आपको पे करते रहना पड़ेगा। आर यू विथ मी? ये समझ में आया आपको? आपको इंटरेस्ट पे करते रहना पड़ेगा डे वन से, स्टार्टिंग ऑफ द डे वन। तो उससे क्या होगा, डे वन से आप जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो आपको उस इंटरेस्ट को भी आपके टैरिफ में, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट में ऐड करना होगा। देन ओनली यू आर एबल टू टेक आउट दैट मनी एंड पे द इंटरेस्ट। ओके, तो अभी हमें देखना है कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जो हिडन है। दीज आर द हिडन एक्सपेंसेस। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द हिडन एक्सपेंसेस। अच्छा, मेरा ये स्लाइड शेयरिंग चालू है ना। नो, फर्स्ट इज इंटरेस्ट। राइट डाउन इंटरेस्ट इन योर नोटबुक। द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ मनी इज नोन एज इंटरेस्ट। द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ मनी मतलब क्या? पैसे यूज करने को दिए आपको किसी ने तो उसको जो कॉस्ट लगेगा दैट इज कंसिडर्ड एज इंटरेस्ट। Then second is when a power station company is requiring huge capital and that money is being borrowed by the bank or any other institute, financial institute, then yes, we required that particular amount in some years of debt, and that is where we need to calculate the interest for the construction period, then installation period, then you are when you are working with that company for marketing and acquiring a new customers, labor charges, yes, plant maintenance, ये सारी चीजें हैं, वो भी आगे आगे देखते हैं। Second is depreciation. Now what do you mean by that depreciation? These are the hidden things. Depreciation का मतलब ये होता है कि आज आपने प्लांट 500 करोड़ का लगा दिया, okay? You have invested 500 crores to the to creating this particular you know what you can say, this particular 500 करोड़ का आपने प्लांट लगा दिया। Now what happen when you are after 20 years you want to sell that plant? मतलब जैसे अभी आप एक नया बाइक लेते हो, तो अभी तो बाइक का कीमत बहुत बढ़ गया है, पहले थोड़ा कम था, अभी तो 1.5 लाख का सीधा कॉस्टिंग आ रहा है आपको बाइक का, या 1.5 लाख या फिर एटलीस्ट 1,20,000 के आसपास कॉस्ट आ रहा है बाइक का। तो अगर उसको आप बेचने जाएंगे, इफ यू आर गोइंग टू सेल दैट बाइक जब 5-6 साल बाद, तो क्या उसको 1 लाख वापस कोई देगा? डेफिनेटली द आंसर इज नो, क्योंकि वो बाइक का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वो जो कम होने वाला वैल्यू है उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द पावर प्लांट इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग ड्यू टू द कॉन्स्टेंट यूज is known as depreciation. Okay, now we need to calculate that depreciation from year on year and from the years when the plant is not being constructed, also when the plant is being used rigorously. तो plant का life देखना है हमें, which is mostly 50 to 60 years, ranging from 50 to 60 years, and the capital which is involved there, say for example 500 crores, each year how many percentage depreciation you need to evaluate. तो ये कैसे करते हैं? इसका कुछ मेथड्स रहता है, स्ट्रेट लाइन मेथड रहता है, सिंकिंग पॉइंट मेथड रहता है, और इसका एक और डेफिनेशन भी है कि अगर आपको 50 साल बाद पता है कि मेरा जो प्लांट है उसका वैल्यू
कम होने वाला है, तो आप उसको अगर समझो 50 साल बाद नया प्लांट बनाने की कोशिश करेंगे, नया प्लांट इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, तो उस समय पे आपको कितना खर्चा आएगा। ओके, दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड एज अ डिप्रिसिएशन। ओके, इतना समझ में आया? तो राइट डाउन दिस टू डेफिनेशंस इन योर नोटबुक, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसमें से लिख लीजिए। ओके, परफेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं विद द कॉस्ट। नाउ एग्जैक्टली व्हाट कॉस्ट वी आर लुकिंग फॉर। कौन सा कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मीनिंग है द कॉस्ट which is like including, independent of whatever the electricity you generate, or whether your plant is working or not, whatever you do, that fixed cost is having no any interest related with that. But what exactly it includes? It includes the salary of the management का जो salary है वो इसमें include होता है, annual expenditure on overall organization, and also like capital investment on the land. So interest, जो interest amount होता है, that is also come under the fixed category. वो खर्चा आपको करना ही है। Okay, then we have semi-fixed cost. Semi-fixed cost is dependent on the maximum demand, but it is not related with the unit generated. Now what do you mean by that? Maximum demand का मतलब है कि हमारे पावर प्लांट की एक्चुअल साइज कितनी होगी, कितना बड़ा हमारा प्लांट होगा, वेदर इट इज 100 मेगावाट प्लांट और वेदर इट इज 500 मेगावाट प्लांट, कितने कैपेसिटी का प्लांट हमें इंस्टॉल करना है। जैसे ही हम सोचेंगे कि हमें 500 मेगावाट का इंस्टॉल करना है, तो हमें उसका कॉस्ट जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा। अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमें सिर्फ 100 मेगावाट का प्लांट इंस्टॉल करना है, तो उसका कॉस्ट कम रहेगा। So this semi-fixed cost is dependent on the maximum demand and it is independent of the units generated. कितने units generate हुए हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। Only thing is that we are going to see कि हमें ये plant कितने maximum output दे सकता है। Okay, perfect. So moving ahead with this, next is you are running। अच्छा, इसमें क्या क्या include होता है वो देखते हैं। टैक्स जो है, टैक्स इसमें इंक्लूड होता है। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे मैंने बताया कि एज पर द कैपेसिटी आपके कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं। देन वी हैव मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन, कितना है उस पर डिपेंड होता है। पावर स्टेशन पे जितना डिमांड है उसको किस तरह से वो हैंडल करने वाला है, उसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट स्टाफ लगेगा, कौन से क्लेरिकल स्टाफ लगेगा कैलकुलेशंस के लिए वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है जो डिपेंड है आपके प्लांट साइज पे। अगर आपका 500 का प्लांट है, 500 मेगावाट का प्लांट है, तो कुछ अलग तरीके से होगा, और अगर आपका 1000 मेगावाट का प्लांट है तो इसका जो व्हाट यू कैन से, इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा अलग तरीके से होगा। इतना ही डिफरेंस है। ओके, देन वी हैव रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट इज वेरी सिंपल। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, हमारे प्लांट को रनिंग कंडीशन में रखना है, तो what we need to do, we need to burn the coal. Okay, कोल को बर्न करना होगा, और कोल को जब हम बर्न करेंगे तो उस समय पे we need like this coal needs to be purchased, needs to be stored, needs to be burned, and whatever amount of ash is generated that we need to dump somewhere. तो ये सारी चीजें जो है ये करने के लिए we require running cost. Apart from that cost of fuel, we need maintenance cost, we need the labor cost, we need the salary of the operating staff, we need the cost of a consultant and an expert who is giving you the value for running your plant smoothly. Okay, so I hope यहाँ तक सबको clear है, right? आगे बढ़ते हैं। How the tariff is basically calculated, and cost of generation is involved. Okay, cost of generation is involved in that tariff. तो कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसके कुछ फॉर्म्स है वो हमें देखने हैं। बिफोर गोइंग टू दैट सेकेंड पॉइंट, डिप्रिसिएशन वाला जो पार्ट है, उसको शुरू करने के लिए वी नीड दिस पर्टिकुलर 8.3 टू बी कवर्ड। तो 8.3 पहले कवर करते हैं और उसके बाद हम लोग 8.2 देखेंगे।
ठीक है, तो लेट्स सी कि ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहला है 3 पार्ट फॉर्म। 3 पार्ट काफी सिंपल है कि जिसमें हम फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, सेमी फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करेंगे और रनिंग कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। ओके, वेरी सिंपल, ए बी एंड सी। तो व्हाट डू यू मीन बाय ए, व्हाट डू यू मीन बाय बी एंड व्हाट डू यू मीन बाय सी? ए स्टैंड्स फॉर द फिक्स वैल्यू ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर अगर कंजम्पशन हुआ है तो हमें तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट जो है, सेमी फिक्स कॉस्ट जो है, ये आपको वहां पे ऐड करना होगा। ओके, वॉट एवर पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, इतना ध्यान में रखिए। चलो ठीक है, आगे है आपका बी के डब्ल्यू प्लस बी के डब्ल्यू। कैन यू सी दैट? मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करने को नहीं आ रहा है, हाँ आ गया। ओके, कैन यू सी दैट नाउ? आर एस इन ब्रैकेट 1 प्लस बी के डब्ल्यू प्लस सी के डब्ल्यू एच। तो मेगावाट आपका मैक्सिमम डिमांड कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप वो वैल्यू को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड सी इज लाइक हाउ मेनी किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स आर बीइंग कंज्यूम। तो ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे दिया है। ए इज नथिंग बट एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द मैक्सिमम डिमांड एंड एनर्जी आउटपुट, एंड इट विल बी ऑलवेज सेम फॉर थ्रू आउट द सेक्शन कि आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करो या कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करो, वो वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगा। सेकेंड है आपका कांस्टेंट विच इज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम किलोवाट डिमांड और मैक्सिमम डिमांड ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेशन। सो इट इज अ एनुअल सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। And then we have a constant value of that particular amount value for number of units generated. तो A, B and C का जो वैल्यू है वो हमें हमारे न्यूमेरिकल में दिया रहता है। ओके, न्यूमेरिकल में वो वैल्यू देते हैं, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, उसको हमें मैक्सिमम डिमांड और नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड कैलकुलेट करके उसे मल्टीप्लाई करना है एंड देन okay, so give me a moment. Then ये एक काफी आसान तरीका है कैलकुलेट करने का। सेकेंड जो है वो है 2 पार्ट फॉर्म। In the 2 पार्ट form, what happens that we are not having the amount which is a fixed amount separated from your running cost and a semi-fixed cost. Then we need to add that as per the maximum demand which is provided by the calculations of previous data, and then we need to identify what will be the cost for our units generated and that too for our annual running cost. Annual running cost क्या है आपका, उसके साथ उसको हम कंपेयर करेंगे। Okay, let's see. In this case, I will share this particular part only so that will be थोड़ा zoom हो जाएगा आपकी। Okay. तो देखिए यहाँ पर you can see it is sometimes convenient to give an annual cost of energy in 2 parts like maximum demand and energy being consumed, and that cost will be simply A multiplied by the maximum demand and plus B multiplied by the kilowatt hour. I know ये जो वैल्यू मिलेगी आपको, this is for the overall time frame, like 1 year के लिए इतना वैल्यू आपको मिलेगा। Now you need to divide that with the hours. For a 1 year, how many hours you divide that, and accordingly that you get the value of kilowatt hour for one energy unit. Okay, कैसे करते हैं? A is a constant which when multiplied by the maximum kilowatt demand on the station gives the annual cost of the first part. तो ये first part आपका clear हो गया, maximum demand के साथ multiply करो उसको, आपको first part मिल जाएगा। Second is that it is again a constant when we are multiplying it with the annual kWh generated. तो पूरे साल में कितने इलेक्ट्रिकल यूनिट जनरेट किए आपके प्लांट ने, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इतना सिंपल है ये, and that's how we are able to calculate the cost of electricity. तो इसका न्यूमेरिकल एक देखते हैं हम लोग before going to the straight line depreciation calculation and diminishing value और a sinking fund मेथड क्या होता है वो भी देखते हैं। ठीक है, बिफोर दैट आई वांट सिंकिंग फंड के पहले न्यूमेरिकल्स है, अभी है जनरेटिंग स्टेशन। यस, नाउ यू राइट डाउन दिस न्यूमेरिकल इन योर नोटबुक। वेरी सिंपल।
A generating station has a maximum demand of 50 megawatt. 50,000 kilowatt का मतलब क्या है? 50 megawatt. Okay. Calculate the cost of per unit generated from the following data. Capital cost दिया है 95 multiplied by 10 to the power 6. Annual cost of fuel and oil 9 multiplied by 10 to the power 6. एनुअल लोड फैक्टर भी दिया है, टैक्स, वेजेस, सैलरी भी दिया है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6. इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन इज 12%. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो किलोवाट या फिर जो हमारा मेगावाट का कैपेसिटी दिया है उससे हमें पता करना है कि एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रिकल यूनिट्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं. तो मैक्सिमम डिमांड है आपका 50 मेगावाट का और लोड फैक्टर है आपका 40%, मतलब 0.4. तो 40% ही आपका प्लांट जो है वो काम में आया है. तो अगर आप 100 यूनिट बनाते थे तो उसमें से सिर्फ 40 ही आप बेच पाए, ऐसा इसका मीनिंग है. ये समझ में आया? या आप मैक्सिमम 100 बना सकते थे बट आपको सिर्फ 40 का ही आप ये कर पाए. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4 एंड मल्टीप्लाई बाय द आवर्स. ये कैलकुलेशन किया गया. Then we get the value of units generated. Now we are looking for what is the cost of this annual fixed cost. तो इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन कॉस्ट हमें ऐड करना है. तो इंटरेस्ट हमें पता है 12%. 12% कैपिटल कॉस्ट. 12% ऑफ कैपिटल कॉस्ट कहाँ पे दिया है? आपको न्यूमेरिकल में दिया है. कितना? 95 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6. उसका 12% निकालो. यहाँ पे मिल गया हमें 11.4 multiplied by 10 to the power 6. Now this is the annual fixed charge कि इतना इंटरेस्ट तो हमें पे करना ही है. But there should be some annual running charges. Annual running charges क्या है? Like fuel cost है, टैक्स है एंड वेजेस मतलब लोगों का सैलरी. तो ये सारी चीजें जो है वो आएंगे आपके रनिंग कॉस्ट में, जो कि यहाँ पे दिया गया है 7.5 एंड 9. तो उसको ऐड करो. इट बिकम 16.5 10 to the power 6. ओके, तो इसको ऐड करना है अभी. इसको फिक्स कॉस्ट को और फिक्स चार्जेस को एंड रनिंग चार्जेस को. 11.4 प्लस योर 17.52. ओके, ये है आपका यूनिट जनरेटेड. इसको हमें डिवाइड भी करना है, इससे डिवाइड करना है. ओके, और एनुअल फिक्स कॉस्ट जो है वो है आपका 11.4 एंड 16.5. तो ये दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमें मिलेगा टोटल एनुअल चार्जेस 27.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6. कॉस्ट पर यूनिट. कैसा कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालने का? नंबर ऑफ यूनिट पता है, कितना खर्चा आया वो पता है, डिवाइड करो टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय यूनिट्स. तो पर यूनिट 16 पैसे हमें कॉस्ट आ रहा है. इट इज नॉट अ सेलिंग प्राइस. डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो that whatever the book is being written in some 10, 15 or 20 years back, तो ये उस समय के रेट है. अभी इसका रेट भी बढ़ गया है. 16 पैसे में अभी कुछ बनता नहीं है, ज्यादा लगते हैं. और इवन द सोलार इज हैविंग अ ट्रिमेंडस हाई कॉस्ट ऑफ 30 to 35 पैसा. तो सबसे कम में हम अगर बात करेंगे तो and there are many other factors which are associated with it. तो आगे बढ़ते हैं. तो किसने कब चालू किया, उसको उस समय पे कितना इंटरेस्ट पे लोन मिला, फंडिंग कैसे मिला, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे मैटर करती है. तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेके रखिए. आपको ये इसको याद से लिखना है. ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी समझने के लिए. अभी हम लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करना है. अभी तक इसमें किसी को कुछ डाउट है? अगर है तो बताइए अनम्यूट करके. ओके, डन. स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? किसी को कुछ डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं. Now what do you mean by these methods? So there is a reduction in the value of a equipment. इक्विपमेंट के वैल्यू में रिडक्शन होने वाला है. नया चीज आपने लिया, बाद में जब भंगार में जाएगा तो उसका कीमत काफी कम हो जाएगा. कैसे कम होगा, क्या होगा वो देखते हैं अभी. देन उसमें क्या मेथड्स है, सबसे पहले वो देखते हैं. एवरी ईयर ड्यू टू डिप्रिसिएशन, लाइक उसमें बर्निंग होगा, जलेगा, वो स्टीम बनेगा, रन होगा, बेयरिंग्स रहेगा, वो खराब होएगा. बहुत सारा चीज है जिससे उसका वैल्यू जो है वो कम होने वाला है. एंड जब ये प्लांट का लाइफ स्पैन जो है वो खत्म होगा तो हमारे पास इतना अमाउंट बचना चाहिए जिससे हम नया प्लांट को रिप्लेस कर सके. ओके, सिंपल. स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है?
वो देखना है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड क्या है वो देखना है, और सिंकिंग फंड वैल्यू क्या है, सिंकिंग फंड मेथड क्या है वो देखना है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन मेथड देखते हैं, काफी सिंपल है ये मेथड। इन दिस मेथड अ कांस्टेंट डिप्रिसिएशन चार्ज इज मेड एवरी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डिप्रिसिएशन एंड द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी। आपका जो प्लांट है वो प्लांट कितना साल तक चल सकता है, मे बी 30 ईयर और 40 ईयर और 50 ईयर और 20 ईयर, और हर एक साल को हम एक वैल्यू से हर बार कम करते जा रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, हमारे एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ से ये प्लांट का स्क्रैप वैल्यू क्या रहेगा, ये हम अभी से डिसाइड करके रखते हैं, और उसका हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट भी होता है कैलकुलेशन में when we are calculating for the tax. Okay, let's see how it works. First of all, take an example. In this method, a constant depreciation charge is made every year on the basis of total depreciation. Obviously, the annual depreciation charge will be equal to the total depreciation divided by the useful life. And if the cost of the overall equipment is 1 lakh rupees, then its scrap value is 10,000 आफ्टर 20 इयर्स। अगर ऐसा हमने कंसिडर किया तो 1 लाख माइनस 10,000 मतलब कितना हुआ, बचा 90,000 का आपका वैल्यू जो है वो डिप्रिसिएट हो गया। बट ये 90,000 का जो डिप्रिसिएशन है वो कितने साल में हुआ, तो ये हुआ आपके 20 इयर्स में, 20 साल में हुआ। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 20, वो अगर कैलकुलेशन हम करते हैं तो जवाब आता है 4,500। इतने रुपीस आपका एवरी ईयर क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, और उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डिप्रिसिएशन। तो ये फॉर्मूला लिखना है आपको, पहले गिव अ हेडिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, देन राइट डाउन दिस फॉर्मूला एंड दिस न्यूमेरिकल आल्सो। थोड़ा सा ही है, एक लाइन का है, आप लिख सकते हो। जैसे ही लिख के होगा टाइप डन इन द चैट बॉक्स। डन एवरीवन, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, काफी सिंपल है। अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, P is the initial cost of a equipment, N is the number of years life कितना है उसका, S is a scrap value, स्क्रैप वैल्यू कितना है, एंड देन यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद कितना कॉस्ट उसका है। ये सारी चीजें जो है ये हम कंसिडर कर रहे हैं। इतना क्लियर है सबको एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड इज डिमिनिशिंग वैल्यू। अभी आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में, जैसे कि पहला साल कीमत था 1 लाख रुपया, आफ्टर 20 इयर्स इट बिकम 10,000। तो क्या वो ऑटोमेटिकली सीधा 20 ईयर पे 10,000 हो गया क्या उसका कॉस्ट? हेलो, सीधा 20 ईयर के बाद उसका कॉस्ट 10,000 हो गया क्या? नहीं, एवरी ईयर इट इज रिड्यूसिंग इट्स वैल्यू, बराबर। अगर उसका वैल्यू रिड्यूस हो रहा है तो उसका डिप्रिसिएशन वैल्यू भी रिड्यूस होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। इसका मतलब है कि अगर डिप्रिसिएशन चार्जेस हर साल फिक्स रेट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिप्रिसिएशन रेट जो है चेंज होने का, दैट इज आल्सो चेंजिंग। इट मींस अगर पहले साल इफ annual rate of depreciation is 10%, then depreciation charge for the first year will be 0.1 multiplied by 10,000, मतलब सिर्फ 1000। तो एक साल में कितना हुआ? पहले साल में सिर्फ 1,000 रुपया ही डिप्रिसिएट हुआ। ऐसा करते करते एट द एंड ऑफ द 20 इयर्स हम ये वैल्यू को काफी कम कर सकते हैं, और उससे हमें बेनिफिट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि P is your capital cost, N is a number of units, S is a scrap value, but here we have the X and PX stands for the depreciation। तो अगर पहला साल आपने डिप्रिसिएशन कंसिडर किया तो उस कॉस्ट को आपको ओरिजिनल कॉस्ट से उसको माइनस करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल आपने अभी 1 लाख का गाड़ी लिया, और वो जो गाड़ी है वो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 5 इयर्स उसका वैल्यू समझो 30,000 है। तो 30,000 होने के लिए क्या वो एक दिन में ही 30,000 हुआ क्या? मतलब एक ईयर में ही हुआ क्या? नहीं, इट टेक 5 इयर्स। बट पहले साल में वो 1 लाख का गाड़ी है आपका, वो शायद 70,000 का हुआ होगा या 80,000 का हुआ होगा, लाइक दैट। तो उससे बोलते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर किया जाता है। तो ये जो वैल्यू है डिमिनिश्ड वैल्यू माइनस एनुअल डिप्रिसिएशन। तो पहले क्या था?
पहले नॉर्मल था, जो आपका टोटल डिप्रिसिएशन है उसको डिवाइड करो यूजफुल लाइफ से। यहाँ पे क्या है, आपका डिमिनिशिंग वैल्यू वाला है, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी गेटिंग द दिस पर्टिकुलर आउटपुट। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट इज सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का फंडा थोड़ा अलग है। इनिशियल वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, स्क्रैप वैल्यू एंड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विच वी आर प्रोवाइडिंग। ओके, अभी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चेंज होगा, दैट इज अगेन अ बिग स्टोरी। बिग स्टोरी कटिंग इट शॉर्ट, आप ऐसा समझो कि फिक्स डिप्रिसिएशन चार्ज हम लोग हर साल तो दे रहे हैं, बट जो उसका इंटरेस्ट कंपाउंड है, दैट इंटरेस्ट कंपाउंड इज also considered for the depreciation, and that's why the cost of replacement P minus S is considered। और वो कॉस्ट हम धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं, डिपॉजिट करते जा रहे हैं, सो दैट एट द एंड ऑफ द सेशन या एंड ऑफ द दैट नंबर ऑफ इयर्स आपके पास एक अमाउंट तैयार हो जाएगा आफ्टर 20 इयर्स, जो आपका ये वैल्यू है, आपका उसका स्क्रैप का वैल्यू है, और स्क्रैप का वैल्यू और एनुअल डिप्रिसिएशन को कंसीडर करेंगे तो आपको ये दोनों वैल्यू ऐड करके P प्लस, जैसे आपने यहाँ पे देखा P माइनस S, उतना आपको कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, आप वहां पे सेव कर पाएंगे, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो है वो भी वहां पे हम कंसिडर करने वाले हैं। ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। दैट इज चैप्टर 8। उसमें से एक पॉइंट रह गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ हाई लोड फैक्टर। अभी हाई लोड फैक्टर के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि हाई लोड फैक्टर मतलब क्या है, कि आपका प्लांट कितने कैपेसिटी पे रन कर रहा है, आपके प्लांट का जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना यूनिट्स आप बेच पा रहे हैं। तो उसमें दो फैक्टर्स है, एक है फैक्टर आपका, आई विल शेयर दिस स्क्रीन ऑल्सो so that you can understand the importance of high load factor that reduces the cost per unit generated। क्योंकि आपके मशीन जो है वो, आपके जो मशीन है वो ज्यादा कैपेसिटी के लिए बने हैं, और आप उसको ओवरऑल उसका जो वर्किंग है वो लिमिटेड अगर कर रहे हो, लोड कम है, मतलब आपकी कैपेसिटी है 100 बनाने की, बट आप 100 बेच नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप ज्यादा बेचेंगे, उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली कॉस्ट जो है वो कम होगा। ओके, सिमिलरली रिड्यूस द वेरिएबल लोड प्रॉब्लम। वेरिएबल लोड के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? In these problems, basically you will be getting a damage to the equipment. You also get a problem related with the frequency variation, also shutdown and repair and regulating devices fail होते हैं, और ये सारी चीजें जो है ये आप बचा सकते हैं, और ये बचाने के लिए आपको हाई लोड फैक्टर रखना बहुत जरूरी है। तो दिस इज व्हाई वी कैन से दैट इंपॉर्टेंस ऑफ हाई लोड फैक्टर इज देयर। फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि आपका जो कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड है वो कम हो जाता है, और सेकेंड जो है, जो वेरिएबल लोड प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ द हाई लोड फैक्टर। ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया है। वी हैव डन विथ आवर चैप्टर नंबर 8 एज वेल एज द रिमेनिंग portion of chapter number 7, so that now economic